dear students, once again in part 2 of haloalkane and haloarene. So in part 1 we have already seen what are these haloalkanes and haloarenes, introduction or importance of these compounds हमने देख लिया है. Now let's see the classification of haloalkanes and haloarenes. इनको हम कैसे classify करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर classification of haloalkanes and haloarenes. तो इनको different ways में हम classify करते हैं. First way to classify these haloalkanes and haloarenes, that is on the basis of number of halogen atoms. On the basis of number of halogen atoms, है ना. halogen atom का number जो है कितना होगा, whether one halogen atom is present, 2 or 3 or more than that. So on the basis of number of halogen atoms हम haloalkanes और haloarenes को classify करते हैं as just like अगर हमारे पास haloalkane है तो अगर उसमें एक halogen atom है तो उसको हम बताएंगे monohaloalkane. So as the name indicates that it contains one halogen atom, monohaloalkane. Just we can give the example. We are having CH3Br, methyl bromide, और इसका जो IUPAC नाम है आगे हम सीखेंगे IUPAC नाम of these haloalkane haloarene, that is bromomethane. इसके अंदर एक halogen atom है, so this is our monohaloalkane, right? Similarly अगर हमारे पास है, let's take CH3CH2Cl, that is ethyl chloride. तो हमारा जो ethyl chloride है इसमें एक halogen atom है, one chlorine atom, it is our monohaloalkane. Similarly we can have monohaloarene, monohaloarenes. So यहाँ पे भी same कि हमारा जो haloarene है उसके अंदर सिर्फ एक ही halogen atom होगा. So just like this, अगर हमारे पास ये बेंजीन है, इसके ऊपर यहाँ पे ब्रोमीन एटम एक ही प्रेजेंट है, so this is our bromobenzene. So this is an example of monohaloarene, right? Similarly अगर हमारे पास दो halogen atoms present होंगे, then we will call it as dihaloalkane. So we are having dihaloalkane. So just we are having, अगर हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन है, then it is CH2, then it is CH2 and again it is here Br. तो यहाँ पे ये जो हमारा अल्केन है इसके अंदर दो halogen atoms है, 2 bromine atoms are present, we will call it as dihaloalkane. So जैसे यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं dibromoethane, 1,2, actual IUPAC name is 1,2 dibromoethane. Similarly it can be 1,2 dichloroethane. ठीक है, तो इनको हम कहते हैं dihaloalkanes. Similarly अगर haloarene होगा तो उसको भी हम बताएंगे dihaloarene. जैसे अभी हमने देखा था हमारे पास बेंजीन था और यहाँ पे एक ब्रोमीन एटम अटैच्ड था. अब अगर यहाँ पे भी नेक्स्ट ब्रोमीन एटम अटैच्ड होगा नेक्स्ट कार्बन पे, तो इसके अंदर भी इस haloarene के अंदर दो ब्रोमीन एटम्स है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ dihaloarene. इसको हम बताएंगे dibromobenzen, dibromobenzen, और we can also have dichlorobenzene, difluorobenzene. These are the examples of dihaloarenes. Similarly we can also have trihaloalkane, isn't it? Yeah. अगर हमारे पास एक ऐसा haloalkane है जिसके अंदर 3 halogen atoms हैं, so that's a trihaloalkane. जैसे अगर हमारे पास ऐसे होगा CH2, यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच्ड है, that is CH, यहाँ पे भी क्लोरीन है, then it's again CH2, इसके साथ भी क्लोरीन है. तो ये जो हमारा अल्केन है
इस अल्केन के अंदर देयर आर 3 हैलोजन एटम्स। इस वाले हेलो अल्केन को हम कहते हैं ट्राई हेलो अल्केन। तो यहाँ पे हेलोजन जो है क्लोरीन है, इसको बताएंगे हम ट्राई क्लोरो प्रोपैन। 3 कार्बन है, 1 2 3। एक्चुअल IUPAC नाम विल बी 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो प्रोपैन। ये हम आगे सीखेंगे। सिमिलरली वी कैन आल्सो हैव ट्राई हेलो अरीन। अरीन आप याद रखेंगे, इट मीन्स एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग होगा, है। ट्राई हेलो अरीन, इसके अंदर भी है ना, जैसे अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस वी आर हैविंग दिस बेंजीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम, एंड यहाँ पे, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई हेलो अरीन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई हेलो अरीन। इसको हम बताएंगे ट्राई क्लोरो बेंजीन। सो ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms we can have monohaloalkane, monohaloarene. Similarly dihaloalkane and dihaloarene. Similarly we can have trihaloalkane, trihaloarene. Similarly we can have polyhaloalkane, polyhaloarenes. जैसे हमारे पास कल हमने देखा था BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC जो है वन ऑफ द वेल नोन इंसेक्टिसाइड। तो अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था दैट यहाँ पे कितने क्लोरीन एटम्स होते हैं अटैच्ड टू दिस साइक्लोहेक्सेन? 6 क्लोरीन एटम्स। इसको हम कहते हैं गैमेक्सिन भी, इसको हम कहते हैं लिंडेन भी, इसको हम कहते हैं, ठीक है, या सिंपली बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो दिस इज आवर पॉलीहैलोअल्केन। ये पॉलीहैलो में आ जाएगा। सो वी कैन हैव मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, etc. haloalkanes or haloarenes. So this is classification is based on the number of halogen atoms. ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे हम याद रखेंगे इसी में, दैट इज ये जो हमारे डाई हेलो अल्केन्स होते हैं, डाई हेलो अल्केन जो हमारे होते हैं, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज जिमिनल डाइहैलाइड्स एंड विसिनल डाइहैलाइड्स। ये क्लासिफिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सो वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ डाइहैलाइड्स। सो लेट्स सी वन टाइप ऑफ, सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन में जो ये डाइहैलाइड्स हैं, डाइहैलाइड, डाइहैलो अल्केन, they can be, number first, geminal dihalide, geminal dihalide. So what are geminal dihalides? You will remember that geminal dihalides जो होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है डाइहैलाइड, इनमें तो डेफिनेटली 2 ही हैलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे। अगर हमारे पास एक हेलो अल्केन है, 2 हैलोजन एटम्स के अंदर है, दैट्स योर डाइहैलाइड। But what is a geminal dihalide? Geminal dihalide is that dihalide in which the 2 halogen atoms are directly attached to the same carbon. So यहाँ पे आप याद रखेंगे, in geminal dihalide 2 halogen atoms are attached to same कार्बन एटम। अगर 2 हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, दैट्स योर जिमिनल डाइहैलाइड। सो जस्ट लाइक दिस, अगर हमारे पास ये है CH2Cl2, तो यहाँ पे इसकी 2D स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है और 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, ठीक है। ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है ना। मैंने बताया था जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो होता है दैट्स 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये मैंने सिंपली 2D स्ट्रक्चर बनाया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स जो है दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। सो इस ये भी हमारा डाइहैलाइड है, but this type of dihalide is known as geminal dihalide.
सो इसका नाम जो है इट इज डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, और एक्चुअल IUPAC नाम we can say it's 1,1 dichloromethane. Okay, let's have another type of dihalide that's called vicinal dihalide. Vicinal dihalides. So what are vicinal dihalides? You will remember, ये वो dihalides है जिसमें दो halogen atoms जो है they are attached to two adjacent carbon atoms. Two adjacent carbon atoms. So यहाँ पे in case of vicinal dihalide, you will remember that two halogen atoms are attached to two adjacent carbon atoms. Adjacent carbon atoms. ये important रहेगा कि दो कार्बन एटम जो होने चाहिए वो एडजेसेंट पोजीशन पे होने चाहिए, 1-2 पोजीशन, दैट्स कॉल्ड एडजेसेंट, है ना, एडजेसेंट कार्बन एटम्स. दैट्स आवर विसिनल डाइहालाइड. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वाला है CH2, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, नेक्स्ट इज CH2 और यहाँ पे भी क्लोरीन अटैच्ड है. द टू हैलोजन एटम्स दे आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, है ना. अगर इसको कार्बन नंबर 1 हम बताएंगे, इसको कार्बन नंबर 2, तो 1-2 position is called adjacent position. So if the two halogen atoms they are attached to two adjacent carbon atoms, that's our vicinal dihalide. So अगर मैं यहाँ पे ये वाला dihalide ले रहा हूँ CH2Cl, then it is CH. So ये जो हमारा dihalide है, यहाँ पे भी दो halogen atoms present है इस alkane के अंदर, but this is not a vicinal dihalide. Why? Because the two halogen atoms they are not attached to two adjacent carbon atom. यहाँ पे जो ये carbon atoms है जिन पे ये attached है, that's 1-3 position. 1-3 position is not the adjacent position. तो इसको हम vicinal dihalide नहीं बताएंगे. Vicinal dihalide is that type of dihalide in which the two halogen atoms they are attached to two adjacent carbon atoms, right? तो ये यहाँ पे हम याद रखेंगे. Just like this, अगर हमारे पास ये वाला डाइहालाइड होगा CH3, then it is CH, here it is Br, bromine atom, that is again here CH2 and we are having bromine atom. This is an example of vicinal dihalide. ये vicinal dihalide है. Why? Because the two halogen atoms, the two bromine atoms, they are attached to two adjacent carbon atoms, है ना. 1-2 position जो है that's our adjacent position. तो ये हम याद रखेंगे. Dihalides as geminal and vicinal dihalides. Now let's see here also what are primary, secondary and tertiary haloalkanes, or we can say alkyl halides. So this is another classification जो यहाँ पे आप याद रखेंगे. So we are having another classification. ये हम बता सकते हैं on the basis of nature of carbon atom to which halogen is attached. So second classification जो है आप यहाँ पे याद रखेंगे, that is on the basis of nature of carbon atom. Carbon atom का nature क्या होगा? Whether the carbon atom is primary, ठीक है, अगर primary carbon atom होगा तो अल्काइल हैलाइड को हम हैलो अल्काइन को हम बताएंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. सिमिलरली अगर कार्बन सेकेंडरी है तो उसको बताएंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. अगर कार्बन टर्शियरी है तो उसको बताएंगे हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. ठीक है. ओके, लेट्स सी हियर. देखो अगर हमारे पास ये वाला अल्काइल हैलाइड है CH3, देन इट इज CH2 and Cl. चलो यहाँ पे ऐसे इसको दिखा देते हैं CH2 and Cl. Now tell me, यहाँ पे ये जो क्लोरीन एटम है हैलोजन एटम, it is attached to that carbon which is attached to two hydrogen atoms. ऐसे कार्बन को हम कहते हैं this is our primary carbon.
represented by 1 degree, है ना. 1 degree indicates that it is our primary carbon. तो इस अल्काइल हैलाइड को हम बताएंगे ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या इसको हम बताएंगे प्राइमरी हैलो अल्केन, राइट. तो कैसे हम याद रखेंगे दैट इफ हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन, ये जो कार्बन है दिस इज अ प्राइमरी कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू एट लीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम. That carbon which is attached to at least 2 hydrogen atoms, that is a primary carbon atom. जैसे अगर यहाँ पे हम देखेंगे if we are having just like this CH3Cl, so इस वाले अल्काइल हैलाइड को हम प्राइमरी बताएंगे या नहीं. तो आप याद रखेंगे दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. वाई? क्योंकि यहाँ पे हैलोजन एटम जो है इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन which is attached to at least 2 हाइड्रोजन. कम से कम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये अटैच्ड होना चाहिए. तो एक, कम से कम 2, तो अगर 3 भी है तब भी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है. सो दिस इज ऑल्सो ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. यू विल रिमेंबर दिस इज ऑल्सो ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. तो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है बिकॉज हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स. नाउ इफ वी आर हैविंग this alkyl halide that CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे क्लोरीन है. Now the halogen atom chlorine, it is attached to that carbon which is attached with 1 hydrogen atom. ठीक है, इस वाले कार्बन को हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन. तो डेफिनेटली इसको हम बताएंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है दिस इज ए secondary alkyl halide या secondary halo alkane. इसको हम बताएंगे secondary. Why? फिर से बता रहा हूँ that if halogen atom is attached to that carbon which is attached to only 1 hydrogen atom, that's our secondary. ठीक है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा इनको याद रखने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. पहले हम ये याद रखेंगे कि प्राइमरी कार्बन वो होता है which is attached to at least 2 hydrogen atoms. सेकेंडरी कार्बन वो होता है which is attached to only 1 hydrogen atom. Now let's have a look on another type of alkyl halide. अगर हमारे पास एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है जिसमें कार्बन जो है it is attached to none other hydrogen atom है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है it is attached to 3 methyl groups, या ये वाला जो कार्बन है ये 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है और इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है. दिस कार्बन इज नोन एज टर्शियरी कार्बन एटम. तो इस वाले अल्काइल हैलाइड को डेफिनेटली हम क्या बताएंगे, इसको हम बताएंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. सो दिस इज अवर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको समझ में आना चाहिए. जो अल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है या किसी वक्त प्रोडक्ट में बनता है तो क्या वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनता है या सेकेंडरी बनता है या टर्शियरी बनता है, तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा. तो एक तरीका हमने याद रखा, प्राइमरी कार्बन एटम इज दैट विच इज अटैच्ड टू एट लीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम्स. हो गई एक डेफिनेशन. दूसरी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू 1 अदर कार्बन एटम और नन अदर कार्बन एटम. ये वाला जो कार्बन है इसको मैंने कहा ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये एक अदर कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है या किसी भी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड नहीं है. दिस इज अ प्राइमरी कार्बन एटम. सेकेंड टाइप आप याद रखेंगे दैट इज सेकेंडरी कार्बन एटम. तो किसको बताएंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ कार्बन विच इज अटैच्ड टू 1 अदर हाइड्रोजन एटम. ये जो कार्बन है इसके साथ एक ही हाइड्रोजन एटम है, दिस इज अ सेकेंडरी. और दूसरा तरीका ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट कार्बन विच इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, है ना, ये 2 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है तो ये सेकेंडरी कार्बन है. और जिस अगर हैलोजन एटम्स इसी सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है दिस आवर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. अनदर इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. सो टर्शियरी मीन्स that carbon is said to be tertiary if it is attached to none other hydrogen atom. अगर ये किसी भी हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच नहीं है ये हमारा टर्शियरी कार्बन एटम है. और
if carbon atom is attached to 3 other carbon atoms, ये जो carbon atom है ये 3 other carbon atoms के साथ attached है, so this is a tertiary carbon atom. So ये classification हम याद रखेंगे और आपको आना चाहिए पहचानना which alkyl halide is primary, which is tertiary, which is secondary. तो यहाँ पे नेचर आप याद रखेंगे कार्बन का कि कार्बन किस तरीके का है, क्या ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी. अगर हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड है दैट्स प्राइमरी alkyl halide. If it is attached to secondary carbon, that is secondary alkyl halide. If it is attached to tertiary carbon atom, it is our tertiary alkyl halide. ये क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे याद रखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी alkyl halides or haloalkanes. Now let's have another classification that's based on type of hybridization of carbon to which halogen atom is attached. अब हम तीसरा जो देखेंगे classification of haloalkane and haloarene में, that is type of hybridization. ठीक है, type of hybridization. तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आप याद रखेंगे, देखो कार्बन के कार्बन शोज 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp भी हो सकती है. ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमने डिटेल में 11th में पढ़ा है. कार्बन जो है इट कैन आल्सो हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड इट कैन आल्सो हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कैसे मालूम पड़ेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है. अगर कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 पाई बॉन्ड्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है. एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं. अगर कार्बन ने सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब ये हुआ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी. और अगर कार्बन ने 0 पाई बॉन्ड, और ऑल सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, पाई बॉन्ड अगर कोई भी नहीं होगा दैट मीन्स सभी बॉन्ड सिग्मा ही होंगे. एट दैट टाइम कार्बन इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. Okay, now let's see type of hybridization. तो type of hybridization में जो पहला हम देखेंगे that is sp3 hybridized CX bond. sp3 hybridized CX bond. इसका मतलब ये हुआ कि हैलोजन एटम जो है, हैलोजन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल X. इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है दैट ये जो हैलोजन एटम है इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी. तो सिंपल है, अगर आपका हैलोजन एटम जो है इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो वो इस कैटेगरी में आएगा. तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं. नंबर फर्स्ट जो है दैट इज अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड्स. तो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल यू ऑलरेडी नो. अगर हमारे पास अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव किया तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने सीखा है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास 11. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग मीथेन CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हम रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा CH3. दैट्स अवर अल्काइल. ये अल्केन था मीथेन, तो एक हाइड्रोजन एटम रिमूव किया तो ये मीथाइल बन जाएगा. ठीक है, सो मीथेन से मीथाइल, इथेन से बनेगा अल्काइल इथाइल, प्रोपैन से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ऑल दीज आर अल्काइल ग्रुप्स. और इसके साथ अगर हैलोजन है अल्काइल के साथ है ना, दैट्स अवर अल्काइल हैलाइड. So let's give the example. अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल दे रहा है CH3 Cl है ना,
ये मिथाइल है, अल्काइल है, और ये इसके साथ हैलाइड है, हैलोजन एटम क्लोरीन। सो दिस इज क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये जो क्लोरीन है इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन जिसके हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट्स sp3 है ना। कैसे मालूम पड़ता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? क्योंकि इसने सभी सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड आपको क्लियरली दिख जाता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है ना। इसको आप ओपन करके भी ऐसे लिख सकते हैं CH3Cl। तो अब यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है दैट यहाँ पे सभी all the four bonds are sigma bonds, so this is a alkyl halide in which halogen atom is attached to that carbon जिसके hybridization sp3 है। इनको हम कहते हैं alkyl halides। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमारे पास है CH3, उसके बाद हमारे पास है CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन एटम है, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं ये अल्काइल हैलाइड है? यस, डेफिनेटली इट इज एन अल्काइल हैलाइड because bromine atom is attached to that carbon जिसके हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कार्बन है it is having all four, it has formed 4 sigma bonds। यहाँ पे 0 pi bond है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लियर? सो दिस इज अल्काइल हैलाइड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट इज एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड जो होता है, एलाइल हैलाइड्स में ऐसा होता है दैट halogen atom is attached to that carbon which is sp3 hybridized, but that sp3 hybridized carbon it is attached to double bonded carbon। ठीक है, ये ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। Okay, let me give the example। ये हमारे पास CH2 है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2Cl। Now tell me कि ये जो क्लोरीन एटम है ये किस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने सभी चारों बॉन्ड जो है सिग्मा बनाए, कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, पाई बॉन्ड यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp3। बट this sp3 hybridized carbon it is attached to double bonded carbon है ना, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी क्या होगी, डेफिनेटली यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया है, तो दो बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड जो है दैट्स अवर पाई बॉन्ड और एक सिग्मा होता है, तो एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। क्लियर? तो ये जो कार्बन है जिसपे मैं स्टार दिखा रहा हूँ, इस वाले कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो अगर हैलोजन एटम एलाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इनको हम एलाइल हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम एलाइल हैलाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें एलाइल हैलाइड में आप ऐसे याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास ये लेट्स टेक दिस एज साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हैलोजन एटम है, लेट्स टेक ब्रोमीन, तो ये भी एग्जांपल है एलाइल हैलाइड की। व्हाई? बिकॉज ब्रोमीन जो है इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि इसने सभी बॉन्ड सिग्मा बनाए हैं, ऑल 4 बॉन्ड्स आर सिग्मा। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, आई होप कि आपको आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक पाई बॉन्ड बनाया है। जब भी डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई होता है और एक सिग्मा। सो ये भी हमारा एलाइलिक हैलाइड है, एलाइल हैलाइड है। ये वाला जो कार्बन है इसको हम कहेंगे एलाइल कार्बन। ठीक है, सो एलाइल हैलाइड में आप क्या याद रखेंगे, that halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is attached to double bonded carbon। फिर से यहाँ पे देख लो, halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom which is attached to sp2 hybridized carbon atom और which is attached to a double bonded carbon atom। ठीक है, इसको हम एलाइलिक कार्बन एटम कहते हैं। फिर से ये याद हम रखेंगे that in allyl halides
halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon which is attached to double bonded carbon. तो इसको हम एलाइल कहते हैं. ठीक, तो वहां पे भी एलाइल हैलाइड है ये, and this is also allyl halide. Now the third type of sp3 hybridized CX bond जो है that is benzyl halide. So what are benzyl halides? In benzyl halides यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे पास, let's take this as a benzene. ठीक है, ये हमारी बेंजीन है. अब यहाँ पे इसके ऊपर CH2 ग्रुप है और फिर यहाँ पे क्लोरीन एटम है. नाउ टेल मी, यहाँ पे भी हैलोजन एटम, इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज हैविंग विच हाइब्रिडाइजेशन sp3. यहाँ पे भी इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है इट इज अटैच्ड टू बेंजीन डायरेक्टली है. ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है इट इज अटैच्ड टू बेंजीन. इसको हम कहते हैं बेंजाइल हैलाइड. दिस इज नोन एज बेंजाइल हैलाइड. बेंजाइल आप डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हैं. अगर हमारे पास टॉलिन होगा तो जस्ट लाइक दिस है ना, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH3 है, इट इज नोन एज मिथाइल बेंजीन या टॉलिन. इसमें से अगर एक हाइड्रोजन एटम सिंपली आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और कौन सा हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप से, what it will become, it will become benzyl. So just like this. यहाँ पे हमारे पास ये अब बचेगा CH2. ये और एक बॉन्ड किसी के साथ भी बना सकता है ना, क्योंकि इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना. तो इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल ग्रुप. ये हम आज से याद रखेंगे, बेंजाइल किसको कहते हैं. जब भी हमारे पास मिथाइल बेंजीन होगा टॉलिन, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव किया फ्रॉम दिस मिथाइल ग्रुप, तो ये बचा यहाँ पे CH2. CH2 इज अटैच्ड टू द बेंजीन, दिस इज अवर बेंजाइल. तो ये है CH2 अटैच्ड टू बेंजीन, बेंजाइल, और यहाँ पे क्लोरीन, इसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड. ठीक है, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं एलाइल क्लोराइड, है ना. नाम ऐसे ही फिर देते हैं. यहाँ पे इसका नाम जो है एलाइल क्लोराइड, इसको बताएंगे बेंजाइल क्लोराइड. So this is also, it also comes in sp3 hybridized carbon halogen bond, CX bond. So benzyl फिर हम कैसे याद रखेंगे, benzyl halides are those in which halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon which is directly attached to benzene ring. Clear? तो ये हमारा benzyl halide है. इसमें भी जो हमारा halogen atom है that's attached to sp3 hybridized carbon atom. Now let us see ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन CX बॉन्ड है. दूसरा अब जो हम देखेंगे दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड. सो अनदर जो इसमें आप याद रखेंगे, लेट्स सी है, दैट इज सेकंड. यहाँ पे इसी में हम देख रहे हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे. So that is sp2 hybridized CX bond. That means यहाँ पे जो halogen atom है it is attached to that carbon which is having sp2 hybridization. Now let's see कहाँ पे ऐसा हो सकता है. तो जैसे इसमें हमने अल्काइल हैलाइड देखा था पहला, है ना. यहाँ पे हम देखेंगे विनाइल हैलाइड. विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, है ना. एक होता है एलाइल हैलाइड, दूसरा होता है विनाइल हैलाइड. सो व्हाट आर विनाइल हैलाइड्स? ये सिंपली those halides in which the halogen atom is directly attached to a double bonded carbon atom. because जैसे हमारे पास this example CH2 double bond CH single bond Cl. Now tell me, क्लोरीन जो है हैलोजन एटम, इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है. तो इसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड. दिस इज नोन एज विनाइल हैलाइड. तो कैसे हम याद रखेंगे, विनाइल हैलाइड जो होता है इसमें ऐसा होता है कि हैलोजन एटम इज
attached to a double bonded carbon atom. This is our vinyl halide. Simply आप याद रखेंगे that halogen atom is attached to a डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, और जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा डेफिनेटली दो बॉन्ड्स इसने बनाया है, वन इज पाई अनदर इज सिग्मा, तो एक पाई बॉन्ड बनाया है तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. So this is our vinyl halide. Now let's see another, that's aryl halide. So what are aryl halides, है ना, जिनको हम हेलोअरीन्स, है ना, ये हेलोअरीन में आ जाएगा. एराइल का मतलब एरोमेटिक, जिसे इसमें बेंजीन रिंग आता है. तो एराइल हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें हैलोजन एटम जो है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग. जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड, है ना. ये हमने इससे पहले भी पार्ट 1 में देखा है कि एराइल हैलाइड्स वो होते हैं, आप याद रखेंगे, इन विच halogen X, है ना, is directly attached to benzene ring, या बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसी पे डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच्ड है. नाउ लेट्स सी क्या यहाँ पे भी हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. यस डेफिनेटली बेंजीन में जो भी कोई कार्बन एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होती है. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे गौर से तो ये जो कार्बन है इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, तो डबल बॉन्ड का मतलब एक डेफिनेटली क्या होगा, पाई बॉन्ड. सो एक पाई बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. सिमिलरली आप कोई भी कार्बन ले सकते हैं, लेट्स टेक दिस वन कार्बन, तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp2 होगी, इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी sp2 होगी. हर एक कार्बन एटम बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इनको हम एराइल हैलाइड्स कहते हैं. सो क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, दैट इज एराइल हैलाइड्स आर दोज इन विच द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग कार्बन. नाउ लेट्स सी, this was sp2 hybridized CX bond. Now let's have the third one, that is sp hybridized. मैंने बता के रखा that कार्बन 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन दिखाता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, so sp3, sp2 and sp hybridized CX bond. तो इसमें आ जाएगा अल्कानाइल हैलाइड, है ना. एग्जाम्पल जो इसमें है दैट इज alkyl halide. Alkyl halides, ठीक है. जस्ट लाइक दिस वी आर हैविंग, अगर हमारे पास यहाँ पे CH देन इट इज ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे है क्लोरीन एटम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज ट्रिपल बॉन्डेड. ट्रिपल बॉन्डेड का मतलब ही है कि दो बॉन्ड्स जो यहाँ पे है पाई बॉन्ड्स है, तो जब दो पाई बॉन्ड्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन की sp होगी. दिस इज इंपॉर्टेंट दैट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन विल बी sp. सो हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन हुज हाइब्रिडाइजेशन इज sp. तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि जब भी कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है. इसका जो IPC नाम है दैट इज 1-क्लोरोइथाइन, है. 1-क्लोरोइथाइन है, तो ये इसमें आ जाएगा, है ना. इनको हम एक्चुअली अल्कानाइल, है ना, अल्काइन्स जो होते हैं, अल्काइन्स जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे भी अगर हम एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे तो वो बन जाएगा अल्कानाइल, ठीक है. अल्कानाइल हैलाइड्स जो है ये इसमें आ जाएंगे sp हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्काइन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है. इसके साथ ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.